Hello friends, welcome in RKG Biology tutorial. We are going to discuss about Bryophyta. See, Bryophyta term given by Robert Brown, and the study of Bryophyta known as the Bryology. Bryophyta के स्टडी को ब्रायोलॉजी बोलते हैं और जो टर्म है ब्रायोफाइटा that given by Robert Brown. Father of Bryophyta that is Hedwig. Okay, Hedwig considered as father of Bryophyta. Father of Indian Bryology that is Professor S.R. Kashyap. Professor S.R. Kashyap considered as father of Indian Bryology. See, bryophytes prefer to grow in moist, damp and sandy places. So they are considered as the Pseophytes. Pseophytes का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जो डैम्प, सैडी, मॉइस्ट प्लेसेस पे ग्रो करना प्रीफर करते हैं, उनको हम Pseophytes बोलते हैं, मतलब सैड लविंग प्लांट. क्लियर? और जो ब्रायोफाइट्स हैं दे मोस्टली ग्रोन इन हिली रीजन में, पहाड़ी एरिया में ये ज्यादा ग्रोन अप होते हैं. क्लियर? हिली रीजन में. सी, दे आर epiphytes. दैट मीन लाइक द एग्जांपल क्रिप्टोथैलस मिराबिलिस. ये जो क्रिप्टोथैलस मिराबिलिस है ये दूसरे प्लांट बॉडी के ऊपर भी ग्रो करता है. क्लियर? So some bryophytes like the Cryptothallus mirabilis is the epiphytic, grown on the another plant body. Some bryophytes like the Boxbomia ephila considered as the saprophytic. That means they obtain its nourishment from dead and decaying organic matter. So one of the example of saprophytic bryophyte that is the Boxbomia ephila. Clear? And epiphytic that is the Cryptothallus mirabilis. Tallest bryophyte that is the Dawsonia. कितना? Approx 50 centimeter in length. Tallest bryophyte. And the smallest bryophyte that is the Zeuxis. क्या नाम है इसका? Zeuxis. That is the smallest bryophyte, approx 0.5 centimeter in length. So the tallest Dawsonia 50 centimeter and smallest Zeuxis approx 0.5 centimeter. And the general size of the bryophytes 1 to 3 centimeter. Clear? Now we see here Bryophytes considered as the amphibian of plant kingdom. Amphibian of plant kingdom का क्या मतलब है कि ब्रायोफाइट्स ट्रांजिशन जोन ऑफ वाटर एंड लैंड पे ग्रोन अप होना प्रीफर करते हैं. सैडी, मॉइस्ट, डैम प्लेसेस पे ग्रोन अप होना प्रीफर करते हैं. दैट्स व्हाई दे आर द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम. और जो ब्रायोफाइट का एंथ्रोजॉइड्स है, दैट मीन मेल गैमेट ऑफ ब्रायोफाइट, दे रिक्वायर वाटर टू ट्रांसफर अप टू द फीमेल गैमेट. जो मेल गैमेट है जिसको हम एंथ्रोजॉइड्स बोलते हैं, उसको फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. क्लियर? सो वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू ट्रांसफर द मेल गैमेट अप टू फीमेल गैमेट. दैट इज व्हाई द ब्रायोफाइट्स कंसिडर्ड एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम. सी, Bryophytes are eukaryotic, means their body is made up of eukaryotic type of cells, well developed type of cells, have the nucleus in the center and all the cell organelles like mitochondria, Golgi body, endoplasmic reticulum, lysosome, ribosome, spherosome, centrosome, vacuole, plastid, all these present in the cell. That is the advanced type of cell, eukaryotic cell. And multicellular. Their body made up of more than one cell.
एंड दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल। कैसे होते हैं ये? टेरेस्ट्रियल होते हैं, लैंड पे सॉइल में ग्रोन अप होते हैं। क्लियर? दे आर क्लोरोफिलस। इनके पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। दैट्स वाई दे आर द फोटो ऑटोट्रॉफिक। इसलिए क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं। क्लियर? सो दे आर फोटो ऑटोट्रॉफिक। and non-vascular type of plant. Non-vascular type of plant means they don't have the conducting tissue. They don't have the vascular tissue. That means they lack complex permanent tissue. That is the xylem and phloem. इनके पास xylem और phloem नहीं होता है. Xylem we know conduct the water and mineral, and phloem conduct the food. So they don't have the xylem and phloem. That means they are the एवेस्कुलर। कैसे है ये? एवेस्कुलर है, इनके पास जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है। दे कम्स अंडर द इम्ब्रियोफाइटा। ये किस में आते हैं? इम्ब्रियोफाइटा में आते हैं। इसका क्या मतलब है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। दैट मीन जाइगोट इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। और जाइगोट क्या करेगा? रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन करेगा और मास ऑफ सेल बनाएगा, एंड दैट इज द इम्ब्रियो। तो ब्रायोफाइटा के केस में इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। That's why they are the embryophyta. Clear? Bryophytes lack true root, stem and leaf. जो bryophytes हैं, इनमें ट्रू नेचर का रूट, स्टेम एंड लीफ नहीं होता है। ट्रू नेचर ऑफ रूट, स्टेम, लीफ absent. Clear? That mean they have leaf like, stem like and root like structure. इनके पास लीफ, स्टेम, रूट तो नहीं होता, बट स्टेम लाइक, रूट लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो दे हैव द लीफ लाइक, स्टेम लाइक एंड रूट लाइक प्लांट बॉडी। क्लियर? दैट मीन ये थैलस लाइक होते हैं। दे आर नॉट ऑफ थैलस बट थैलस लाइक। दैट मीन लीफ लाइक, स्टेम लाइक एंड रूट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी। इनमें जो रिप्रोडक्शन है दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। ठीक है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का प्रोडक्शन होगा, गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट का रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होगा, एम्ब्रियो बनेगा, दैट मीन प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। सो ऑल दीज स्टेप्स टेक्स प्लेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो द रिप्रोडक्शन इज वेजिटेटिव, asexual and sexual. Vegetative reproduction by fragmentation, that means any body part detach and give rise the new organism like this. So that is the vegetative reproduction. और यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड। सेक्स ऑर्गन कैसे हैं? मल्टी सेलुलर है और जैकेटेड है। एल्गी में हमने देखा था कि जो सेक्स ऑर्गन था वो यूनिसेलुलर था और नॉन जैकेटेड था। यहाँ पे क्या है? सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड है। जैकेट इज अ लेयर विच कवर द सेक्स ऑर्गन, प्रोटेक्ट द सेक्स ऑर्गन। जो मेल सेक्स ऑर्गन है इसको क्या बोलते हैं? मेल सेक्स ऑर्गन नोन एज द एंथ्रीडियम सिंगुलर एंड एंथ्रीडिया प्लूरल। तो जो मेल सेक्स ऑर्गन है इसको हम एंथ्रीडियम बोलते हैं। और मेल गैमेट को क्या बोलेंगे? मेल गैमेट एंथेरोजॉइड या स्पर्मेटोजॉइड। तो जो मेल गैमेट है दैट इज द एंथेरोजॉइड या स्पर्मेटोजॉइड। क्लियर? फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट इज नोन एज द आर्किगोनियम। क्या बोलने वाले हैं? आर्किगोनियम सिंगुलर एंड आर्किगोनिया प्लूरल। सो फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट इज द आर्किगोनियम। और जो ब्रायोफाइट है ग्रुप, ये फर्स्ट आर्किगोनियम है, मीन्स फर्स्ट आर्किगोनिएट है ब्रायोफाइट। सबसे पहले जो आर्किगोनिया है दैट इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन, वो कहां पे है? दैट इज द ब्रायोफाइट में है। सो द फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट इज द आर्किगोनियम। और जो फीमेल गैमेट है दैट इज द एग और ओवम। और इसमें जो लाइफ साइकिल है, तो लाइफ साइकिल किस तरह का है? हेप्लोडिप्लॉन्टिक पैटर्न ऑफ लाइफ साइकिल है। हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ पैटर्न का क्या मतलब है? कि हेटेरोमॉर्फिक लाइफ फॉर्म है। दो फॉर्म प्रेजेंट होते हैं पूरे लाइफ में। एक फॉर्म को बोलते हैं हम
गैमिटोफाइट और दूसरे फॉर्म को बोलते हैं हम स्पोरोफाइट। तो गैमिटोफाइट एंड स्पोरोफाइट दे अल्टरनेट टू ईच अदर। पहले गैमिटोफाइट, फिर स्पोरो, फिर गैमिटो, फिर स्पोरो। तो इस तरह से एक के बाद एक स्टेज आएगा लाइफ में। इसी को बोलते हैं हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो जो डोमिनेंट फेज है पूरे लाइफ में, दैट इज द गैमिटोफाइट है। डोमिनेंट का मतलब क्या, ज्यादा समय तक जो लाइफ फेज है वो क्या है, गैमिटोफाइट है। और गैमिटोफाइट कैसा है, ऑटोट्रॉफिक है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस करता है और फूड बनाता है। क्लियर? सो गैमिटोफाइट इज डोमिनेंट एंड ऑटोट्रॉपिक, मीन्स कैन फोटोसिंथेसिस एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड। और ये जो गैमिटोफाइट है ये थैलस लाइक होता है। किस तरह का होता है, थैलस लाइक होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है। क्लियर? तो ये थैलस लाइक है। और ये गैमिटोफाइट कैसे प्रोड्यूस होता है, बाय द जर्मिनेशन ऑफ स्पोर। स्पोर जब जर्मिनेट करता है, हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट करेगा तो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन होगा। क्लियर? तो गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन कैसे होता है, बाय द जर्मिनेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। और ये जो गैमेटोफाइट है दैट कंटेन द सेक्स ऑर्गन ऑफ द प्लांट। जो सेक्स ऑर्गन्स है, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया, ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं, गैमेटोफाइट थैलस पे प्रेजेंट होते हैं। और गैमेटोफाइट कैसा है, एन का मतलब हैप्लॉइड। क्लियर? तो जो फर्स्ट स्टेज है, जो डोमिनेंट स्टेज है लाइफ साइकिल में, वो क्या है, गैमेटोफाइट है। ये हैप्लॉइड होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस करता है, थैलस लाइक होता है। और जो सेक्स ऑर्गन है, एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम, ये गैमेटोफाइट पे प्रेजेंट होता है। और गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन फॉर्मेशन कैसे होता है, बाय द जर्मिनेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। क्लियर? जो सेकेंड स्टेज है दैट इज द स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट का मतलब क्या है, डिप्लॉयड है। ये कैसा है, डिप्लॉयड है। क्लियर? दैट मीन जब एंथ्रोजॉइड्स और एग सेल आपस में फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट क्या है, इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। स्पोरोफिटिक जनरेशन का जो फर्स्ट सेल है वो क्या है, जाइगोट है। जाइगोट रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन में जाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, इसके बाद प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होगा। सो दैट इज द स्पोरोफाइट स्टेज ऑफ द ब्रायोफाइट। और ये कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। क्लियर? और जो स्पोरोफाइट है ये अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने नरिशमेंट के लिए गैमेटोफाइट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, गैमेटोफाइट पे डिपेंड करेगा फॉर द नरिशमेंट। क्लियर? और जो स्पोरोफिटिक बॉडी है दैट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स मेनली, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। फूट में, सीटा में और कैप्सूल में डिवाइडेड होता है स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। क्लियर? सो दैट इज द 2 स्टेजेस ऑफ द 2 फॉर्म ऑफ द लाइफ। ठीक है? गैमेटोफाइट, गैमेटोफिटिक स्टेज, स्पोरोफाइट, स्पोरोफिटिक स्टेज। गैमेटोफाइट कैसा है, डोमिनेंट है, हैप्लॉइड है, ऑटोट्रॉपिक है, थैलस लाइक है। और ये कैसे प्रोड्यूस होता है, बाय द जर्मिनेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। और सेक्स ऑर्गन कहां पे प्रेजेंट होता है, गैमेटोफाइट स्टेज पे प्रेजेंट होते हैं। जो स्पोरोफाइट है ये डिप्लॉयड है, ये अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करता है गैमेटोफाइट पे। और इसका प्लांट बॉडी फूट, सीटा, कैप्सूल में डिवाइडेड होता है। फर्टिलाइजेशन के रिजल्टेंट जाइगोट बनेगा, दैट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द स्पोरोफिटिक जनरेशन। और ये जाइगोट रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन करेगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, देन फर्दर ग्रोथ होगा एंड द स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? सो दीज 2 आर द स्टेजेस ऑफ द plant body, and these bryophytes divided into 3 groups. One is the Hepaticopsida, जिसको क्या बोलते हैं हम, लीवर वर्ट बोलते हैं। लीवर वर्ट क्योंकि इसका जो गैमेटोफाइट है वो हिपैटिक सेल्स, लीवर के जैसा दिखाई देता है, अपीयरेंस इन द लीवर लाइक स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई इट इज द लीवर वर्ट और हिपैटिकॉप्सिडा। एग्जाम्पल्स है इसमें रिक्सिया, मार्केंसिया, पेलिया, these are the examples of liverwort, that is the Hepaticopsida, looks like the liver. Second,
Anthoceratops